Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus online lectures. This lecture is for grade 6 English and we are going to start unit number 4, which is a character description. And here it is a story which name is The Barber's Plight. This is lecture number 3 given to you online. In this lecture we will cover reading of the story The Barber's Plight. I will give you the meanings of difficult words and you will write down those meanings in your English classwork notebook. So please open your English classwork notebook and prepare index by writing date, serial number and topic. Before we begin with the reading, make sure that you have your English student's book, your classwork notebook and your complete stationery available with you. You know that when you need to write down anything or your book or your workbook, you write it down with the lead pencil. So you need a lead pencil, an eraser and a sharpener. When you need to write down anything on your notebooks, you first have to draw a margin line. So you must have a scale with you. You write down with the blue marker and blue ink pen on your English notebooks. So you must have both of them also. I hope you all are listening the lectures very attentively and carefully and following all the directions given by your teachers, and you already know that if you need to ask anything from your teacher, you can send a WhatsApp voice note clearly mentioning your name, grade and the subject about which you need to ask anything. Please open page number 26 and mark date and day on the top of this page. Character description, The Barber's Plight. Dear grade 6 students, character description is a type of writing that gives the reader information about a character, about any personality. इसमें उसकी character description में उसकी appearance भी हो जाती है, उसकी nature wise description भी आती है, किसी भी character की, किसी भी personality की. In this lesson, The Barber's Plight, an emperor had a wisest minister named Birbal. Birbal was emperor's favorite. Look at in this picture. In the red gown, he is the emperor named Akbar, and in the blue gown, here is the picture of Birbal, who is Akbar's favorite minister. This is the story about Birbal. Other ministers were very jealous of Birbal's fame. The ministers wanted to get rid of Birbal. The ministers, with the help of the emperor's barber, tried to trap Birbal, but Birbal saved himself with his great wit and barber got caught in his own trap. ग्रेड 6 स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारी स्टोरीज़ इनके बारे में पढ़ी भी होंगी, आपने बहुत सारी शॉर्ट मूवीज़, बहुत सारी एनिमेशन मूवीज़ भी देखी होंगी जिनमें अकबर एंड बीरबल की स्टोरीज़ होंगी. बिल्कुल वैसी ही एक स्टोरी यहाँ आप अपनी बुक में पढ़ने जा रहे हैं. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ बिट फनी स्टोरी. You are going to enjoy this lesson. So let's begin reading with me. I hope you all have written date and day on the top of page number 26. Open your English classwork notebook and prepare classwork page. You know that when I ask you to prepare classwork page, it means that you need to write down date and day on the top of page and the topic, and you need to draw a line in the middle of the page. First of all, you need to draw the margin line and then a line in the middle of page for words and meanings. I'm going to read this story and I'll explain it for you. Just read it with me. Move your finger on the words that I am reading. Let's begin. The Barber's Plight. Birbal was Emperor Akbar's favorite, well-reputed minister because of his wit and wisdom. However, there was a group of ministers that were jealous of his popularity and disliked him intensely. They outwardly showed him with praise and beautiful compliments, but on the inside, they began to hatch a plot to kill him. Okay, dear grade 6 students, in this paragraph it is an introduction about the story कि जो बीरबल है वो एम्परर का फेवरेट मिनिस्टर है और वो वेल रिप्यूटेड है, और वेल रिप्यूटेड मीन्स कि गुड फेम है उसका, सब लोग उसे रिस्पेक्टेबली जानते हैं, और एज ही इज़ फेवरेट ऑफ
एम्परर, सो बाकी सारे मिनिस्टर जो हैं वो उससे जेलस होते हैं। उसके सामने वो उसको गुड कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन इनसाइड वो उसे बहुत ज़्यादा हेटर्ड हैं और वो उसके किल करने के लिए प्लान करते रहते हैं कि किसी तरह हम इसको किल कर दें या ये किसी तरह यहाँ से दूर हो जाए और हम में से कोई और जो एम्परर है उसका फेवरेट बन जाए। One day they approached the king's barber with a plan to get rid of बीरबल। उन्होंने क्या किया, वो अकबर जो कि एम्परर था, जो बादशाह था, किंग था, उसके बार्बर के पास गए और उसे कहा कि मिलके एक प्लान करते हैं बीरबल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का। टू गेट रिड ऑफ बीरबल परमानेंटली मीन्स कि उसे किसी तरह से हम उसके मर्डर का इन्होंने प्लान करना था। एंड ऑफ कोर्स दे प्रॉमिस्ड हिम टू ह्यूज सम ऑफ मनी इन रिटर्न। साथ में उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम हमारे साथ प्लान करके हमारी बात मान लो और बीरबल को का मर्डर करने में हमें हेल्प आउट करो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मनी देंगे। द विकेड क्राफ्टी बार्बर रेडिली अग्रीड। विकेड क्राफ्टी मीन्स क्लेवर, क्लेवर नॉट इन द सेंस ऑफ इंटेलिजेंट और नॉट अ पॉजिटिव क्लेवर, बट ऐसा क्लेवर जो कि रॉन्ग टाइप के प्लान्स बनाता हो, जो विकेड प्लॉट्स करता हो। द नेक्स्ट टाइम द किंग required his services, the barber started a conversation about the emperor's father, who he also used to serve. He sang praises of his fine, silky, smooth hair, and then as an afterthought, he asked the king that as he was enjoying such a prolific, prosperous fortune, had he made an attempt to do anything for the welfare of his ancestors? Okay. दिस इज़ अ वेरी टफ पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं, बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। एक्चुअली यहाँ हुआ क्या, नेक्स्ट डे जब मिनिस्टर्स ने जाके बार्बर से कहा कि हमारे साथ मिलके बीरबल को मर्डर करने का प्लान करो, हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मनी देंगे, उन्होंने मिलके एक प्लान बनाया। और नेक्स्ट डे जब बार्बर जो किंग है उसके पास गया, उसे सर्विसेज देने, सर्विसेज मीन ऑफ कोर्स उसका हेयर कट करना होगा। जब उसका हेयर कट कर रहा था तो साथ में वो उसके साथ बातें कर रहा था किंग के एंसेस्टर्स की, किंग के फादर और फोर फादर्स की बातें करने लग गया कि मैं आपके फोर फादर्स को भी इस तरह से सर्विसेज देता होता था, मैं उनके भी दरबार में आता था, मैं उनकी खिदमत करता था, एट्सेट्रा, इस तरह की बातें करने लग गया। और फिर उसने ये कहा, बार्बर जो कि उसकी किंग का हेयर कट कर रहा था, उसने कहा आपको आपके एंसेस्टर्स ने इतना कुछ दिया है, इतनी सारी वेल्थ दी है, आप किंग हैं अपने फादर और फोर फादर्स की वजह से, तो आपने उनके लिए क्या किया। किंग फ़ौरन से हैरान हो गए कि जब मेरे फादर और फोर फादर्स और ग्रैंडफादर वो सब तो अब डेड हैं, वो सब तो अल्लाह पाक के पास चले गए हैं, तो अब मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। द किंग वॉज फ्यूरियस एट सच इम्पोर्टेंट stupidity and told the barber that it was not possible to do anything because they were already dead. जो किंग था वो बहुत ज़्यादा अचानक से फ्यूरियस हो गया, और फ्यूरियस मीन्स एंग्री हो गया, और उसने एंगर शो किया और कहा कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, दे आर ऑलरेडी डेड। द बार्बर मैंशनड दैट ही न्यू ऑफ अ डिस्टिंक्टिव ओल्ड मैजिशियन हु कुड सेंड अ पर्सन अप टू हेवन टू इंक्वायर अबाउट द फादर्स वेलफेयर। The barber then suggested the best person for the job, the wisest and the wittiest of all the ministers, बीरबल। हुआ क्या, बार्बर ने कहा कि मैं एक ऐसे मैजिशियन को जानता हूँ, एक बहुत ओल्ड मैजिशियन है, बहुत स्पेशल है। वो क्या कर सकता है, वो किसी पर्सन को हेवंस में भेज सकता है, जन्नत में भेज सकता है, आसमानों में भेज सकता है, कि वो पर्सन जाके वहाँ से आपके फादर और फोर फादर्स का हाल चाल पूछ के आए, और ये काम कोई ऐसा पर्सन करे जो सबसे ज़्यादा वाइज और विटियस्ट हो। तो मेरे जो किंग था उसके माइंड में सबसे पहले बीरबल का ख्याल आया, क्योंकि बीरबल बहुत ज़्यादा लॉयल था उनके साथ, किंग के साथ। तो किंग ने सोचा कि अच्छा चलो, जो ऐसा मैजिशियन है वो आए और जिस पर्सन को वो हेवंस में भेजेगा मेरे फादर और फोर फादर्स का हाल चाल पूछने के लिए, बीरबल को वो भेज दे, क्योंकि बीरबल मेरा सबसे लॉयल मिनिस्टर है। The king was very excited and asked the barber to go ahead and make the immediate essential arrangements. The barber explained that they would take Birbal in the procession to burial grounds, and the magician would then chant some magical words so Birbal could ascend to the heavens.
अच्छा, अब बार्बर ने क्या कहा कि हमें जाना होगा कब्रिस्तान, वहाँ पे जाके जो मैजिशियन है बीरबल को वहाँ बुलाएगा और साथ में कुछ मैजिकल चैंट्स वो रिसाइट करेगा, जैसे वो मंत्र होते हैं वो रिसाइट करेगा, और बीरबल जन्नत में चला जाएगा आपके फादर और फोर फादर्स का हाल चाल पूछने। जो किंग था वो बहुत एक्साइटेड हुआ, उसने कहा कि फ़ौरन से अरेंजमेंट्स करें इस पूरी एक्टिविटी की और हम बीरबल को ऊपर हेवंस में भेज देते हैं। अब होना क्या था, इन्होंने बीरबल को का मर्डर कर देना था और बादशाह ने ये समझना था कि बीरबल तो उनके हेवंस में गए हैं, जन्नत में गए हैं उनके फोर फादर्स का हाल चाल पूछने, और एक्चुअल में इन्होंने बीरबल को मर्डर कर देना था। कम टू पेज नंबर 27। द किंग हैप्पीली इन्फॉर्म्ड बीरबल ऑफ हिज प्लान. Birbal agreed to go to heaven on condition that he should be given a large sum of money for a long journey as well as 1 month's time to settle his family so that they had no trouble while he was gone. The king agreed to both conditions. ओके, अब किंग ने बीरबल को बताया कि हमने ये प्लान किया है, आपको हेवंस में जाना होगा। बीरबल अग्री हो गए और उन्होंने कहा कि मैं हेवंस में जाऊंगा बट आई हैव 2 कंडीशंस। अब उन्होंने कंडीशन दी क्या कि एक तो मुझे बहुत ज़्यादा लार्ज सम ऑफ मनी दें कि मैं अपनी फैमिली की सेटलमेंट्स कर सकूं, और मुझे बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी पे जाना, ऑफ कोर्स जन्नत में जाना बहुत एक लॉन्ग जर्नी है, तो मुझे आप एक सम ऑफ मनी दें, ह्यूज सम ऑफ मनी, और साथ में मुझे 1 मंथ का टाइम दें कि मैं अपनी फैमिली के लिए और अपनी इस जर्नी के लिए सेटलमेंट्स कर सकूं। अब इस टाइम में एक्चुअली बीरबल ने खुद कुछ प्लान करना था, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये तो मेरे मर्डर का प्लान हो रहा है, बिकॉज ही वॉज द वाइजेस्ट एंड विटिएस्ट ऑफ ऑल। In the duration of this month, Birbal got a few trustworthy and helpful friends to build a tunnel from the funeral ground to his house. And on the day of ascension, he escaped through the concealed door of the tunnel. He disappeared into his house, where he hid for a few months while his hair and beard grew long and unruly. In the meantime, his jealous, tricky enemies were rejoicing as they thought that they had seen the last of Birbal. अब बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने वो जो 1 मंथ उसने किंग से लिया एज अ कंडीशन, उस 1 मंथ में उसने क्या किया, अपने घर से उस फ्यूनरल ग्राउंड तक, वो जो कब्रिस्तान था फ्यूनरल ग्राउंड, वहाँ तक उसने एक टनल खुदवाई। टनल होती है सुरंग, एक तंग रास्ता ज़मीन के अंदर से गुजरता हुआ। आपने ये मूवीज़ में या एनिमेशन मूवीज़ में देखी होंगी टनल्स, जिसके अंदर से लोग गुजर के जाते हैं। रोड्स होते हैं ग्राउंड के ऊपर, और जो टनल्स होती हैं वो अंडरग्राउंड पाथ्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, कि लोगों को पता ना चले। उसने अपने घर से उस फ्यूनरल ग्राउंड तक एक टनल खुदवाई जो कि सीक्रेट था, किसी को भी नहीं पता था। और बीरबल ने क्या किया, जब वो जिस दिन वहाँ पे मैजिशियन ने उसे हेवंस में भेजना था, बीरबल ने क्या किया, फ्यूनरल ग्राउंड से मैजिशियन वहाँ पे वो मैजिकल चैंट्स रिसाइट कर रहा था, वो मंत्र पढ़ रहा था, और बीरबल खामोशी से उस फ्यूनरल ग्राउंड में से उस टनल के अंदर से होता हुआ अपने घर चला गया। मैजिशियन को ये लगा कि हमने उसको जला दिया है, यहाँ पे हमने उसको ख़त्म कर दिया है, और इसी तरह बाकी सारे जो मिनिस्टर्स थे उन्हें भी ये लगा कि उन्हें तो बीरबल से छुटकारा मिल गया है। लेकिन बीरबल कहाँ चले गए, अपने घर जाके बीरबल ने खुद को कुछ मंथ्स के लिए हाइड कर लिया वहाँ पे। और हाइड करने के बाद उन्होंने क्या किया, कुछ मंथ्स के लिए उन्होंने अपना हेयर कट भी नहीं करवाया और अपनी बियर्ड भी उन्होंने बढ़ा ली और अनरूली और लॉन्ग कर ली, ताकि जो किंग है उसको वो वापस जाके ये बता सके कि हेवंस में मैं गया था और वहाँ पे कोई बार्बर नहीं था, जिसकी वजह से मेरे हेयर भी लॉन्ग ग्रो हो गए और मेरी जो बियर्ड है वो भी अनरूली और लॉन्ग हो गई। इस टाइम में जो उनके जेलस एनिमीज़ थे, जो बाकी मिनिस्टर्स थे, वो ये समझ रहे थे कि बीरबल को उन्होंने मार डाला है। Then one day Birbal arrived at the palace with the news of king's father. एक दिन क्या हुआ, बीरबल अचानक से पैलेस में आ गए और उन्होंने आके किंग को बताया कि आपके फादर और फोर फादर्स बहुत अच्छे हालत में हैं, जैसा कि उन्होंने ये प्रिटेंड किया कि वो हेवन से होके आए हैं और उनका हालचाल पूछ के आए हैं। The king was extremely pleased to see him and ready with the barrage of questions. Barrage means a lot. King was रेडी फॉर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अपने फादर और फोर फादर्स के बारे में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस करना थे उनसे कि वो कैसे हैं, वो वहाँ क्या करते हैं। बीरबल इलेटेडली टोल्ड द किंग दैट हिज फादर वॉज इन द बेस्ट ऑफ स्पिरिट एंड हैड बीन प्रोवाइडेड विद ऑल द कम्फर्ट्स।
कि बीरबल ने उन्हें बताया कि आपके फादर जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बिल्कुल मज़े में हैं वहाँ पे। He paused for a minute, then continued in a solemn voice that his father had asked for a fine, skillful barber. अब बीरबल ने क्या किया? अब बीरबल ने कहा अकबर से कि आपके फादर ने एक रिक्वेस्ट की है, एक फेवर मांगी है कि उन्हें वहाँ पे कोई अच्छा बार्बर वहाँ पे नहीं है, उन्हें वहाँ पे कोई बार्बर चाहिए। Soon after the king decided to send his own barber to serve his father in the heaven. The barber could say absolutely nothing in his own defense as he was caught in his own trap. अब हुआ क्या, किंग ने सोचा कि अच्छा मेरे फादर और फोर फादर्स को वहाँ हेवंस में कोई बार्बर नहीं मिल रहा, मैं अपना बार्बर वहाँ भेजूँगा। अब ये वही बार्बर था जिसने ये सारा प्लान ट्रैप किया था और उसने ये सोचा था कि बीरबल का मर्डर हो जाएगा, लेकिन इन दी एंड हुआ क्या, वो खुद ही अपने ट्रैप में फंस गया और अब वो कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि ये सारा जो झूठा प्लान था, सारी जो झूठी स्टोरी थी वो उसने खुद ही बनाई थी, सो वो कुछ कह भी नहीं सकता था। डिड यू एंजॉय द स्टोरी? आई रियली एंजॉयड इट. इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड फनी अ बिट. सो नाउ लेट्स start discussing our today's homework. Open your diary, write down date if you haven't written it yet. Subject is English and note down your homework. First of all, of course, you need to listen this whole lesson again with the and read it with the correct pronunciation. You will learn all the word meanings I have given you in this classwork. And this is all for today's homework. End of this lesson. Good luck grade 6. Allah Hafiz.